Hello everyone, welcome you all again my YouTube channel Let's Do Biology. So I am hoping you all are doing well and preparing for your entrance exam. So in today's video I am gonna discuss with you all about the TFIR GS entrance exam. I will discuss the complete information. I will give you each and every information about this entrance exam, that how its paper pattern look like and what syllabus you will get or what syllabus you should follow for this entrance exam. So guys, if you are new to my channel, then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology, and please, if you are liking my videos, then share with your friends also. Okay, so let's get start now today's video. तो सबसे पहले I will introduce you all with this entrance exam, that what is this, and short of other information about this entrance exam. So as you all know, the entrance exam name as T for GS. GS stand for Tata Institute of Fundamental Research of Graduation. This G for graduation in school. ठीक है. The next, it is conducted not by any external agency but itself by Tata Institute of Fundamental Research. Then the exam mode will be offline like paper pen, not that online mode. Okay, then next is exam medium, that will be English only, and duration of exam will be 3 hours. Exam level, it is national level entrance exam, and it will be of 100 marks. Okay, then yes, you will get negative marking in this exam. Although all of the national level entrance exams has negative marking, it differs in accordingly to entrance exam, but yes, there it is, that negative marking you will get in all the entrance exams. Okay, so this is sort of introduction about this entrance exams that you gonna face during. Okay, so then next, in this my video, I will particularly focused on biology subject. ठीक है. So if I discuss about the course, that this exam will be for PhD, int PhD, in which MSc and PhD both are there, and MSc only. ठीक है. So these courses are well offered by this differ and by this entrance exam. Then the college which mainly are for biology are Department of Biological Science, differ Mumbai, NCBS which is in Bangalore itself, and then finally is this TICS, differ Center for Interdisciplinary Sciences, Hyderabad. So these three colleges are under TFIR which pursue for the biology course. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द इंफॉर्मेशन कि आपको कौन सा कॉलेज, अगर आप बायोलॉजी को मेनली फोकस्ड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है आपका सब्जेक्ट, तो यू कैन गेट द एंट्री इन दीज थ्री कॉलेजेस. ठीक है. सो देन नेक्स्ट इज अबाउट द पेपर पैटर्न कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस और हाउ मेनी सेक्शंस एंड विच sort of subject you have to prepare for your this entrance exam. ठीक है. सो आई विल डिस्कस अबाउट दैट. सो जो पेपर पैटर्न है वो क्या होता है, मेनली इन दिस एग्जाम यू विल फेस 4 sections. So 4 sections is like 4 different subject, like I will discuss in my next slide ki 4 sections, which 4 sections you will get in your paper. So these 4 sections are split in 2 subsections. जो भी 4 sections है, different 4 sections होंगे, and then these 4 sections are further divided into 2 subsections. ठीक है. Then okay, so this is in this slide itself also journal, and first 4 जो sections होंगे, first is journal, then next is physics, chemistry and biology, and these their subsections are like A and B for all of these 4 sections. ठीक है. So these 4 sections, major 4 sections you will get journal, physics, chemistry and biology. Okay. फिर ओके ओके, दिस इज द थिंग कि आपने जो अपना हाई स्कूल में और यूजी में ग्रेड अंडर ग्रेड में जो पढ़ा है, दैट ओनली यू विल फेस इन योर एग्जाम. सो
आगे वो मैं डिस्कस करूंगी कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है और मेनली किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, कि किस पार्ट में से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, सो जो पीवाईक्यू है उनको देख के मैंने एनालाइज किया कि कौन कौन से पार्ट को पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सो ऑल क्वेश्चंस, हाँ ओके। सो जितने भी क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस होंगे, नोट लाइक कि एमएसक्यू होंगे, ओनली वन आंसर करेक्ट होगा। बट द थिंग इज कि ये जो सेक्शन है ना, जो ए और बी सब सेक्शन है, ये कैसे डिसाइड किया गया है? जैसे लगा लो आपका एक फिजिक्स वाला पार्ट है, हर एक पार्ट में 15 क्वेश्चन आएंगे, तो लगा लो फिजिक्स के पार्ट में आपका 15 क्वेश्चन आया। अब एक 15 क्वेश्चन आया टोटल, बट इनके सब सेक्शन होंगे अब ए और बी। अब वो सब सेक्शन कैसे बनाए गए हैं? नंबर के बेसिस पे, कि जो 10 क्वेश्चन होंगे वो तो आपके होंगे 1 मार्क्स के। ठीक है, ए जो सब सेक्शन है 10 क्वेश्चन होंगे, वो तो एक एक नंबर के होंगे। फर्दर 5 क्वेश्चन वो 2 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये 10 मार्क्स और ये भी 10 मार्क्स, तो हर एक सेक्शन 20 मार्क्स कंटेन कर रहा है। ठीक है ना, आई थिंक सो कि 20 ही कर रहा है। ओके, सो 15 क्वेश्चंस होंगे सारे सेक्शंस में ऑलमोस्ट, और 10 क्वेश्चन सब सेक्शन ए में, 5 बी में। ए सब सेक्शन वाले 1 मार्क्स के, बी वाले 2 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग होगी इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। ठीक है, सो इस तरीके से पेपर का पैटर्न होगा सॉर्ट ऑफ। ठीक है, सो नेक्स्ट आई विल डिस्कस विद यू ऑल अबाउट द सिलेबस, जो कि इसका फिक्स सिलेबस ऐसा नहीं है, बट स्टिल आई विल डिस्कस सम शॉर्ट ऑफ सिलेबस। सेक्शन ए में एज आई ऑलरेडी डिस्कस कि जर्नल क्वेश्चन होंगे। अब देखो, जर्नल क्वेश्चन का ना कोई भी अलग से प्रिपरेशन कहीं भी नहीं करना होता, जो कि मैं अपने सारे वीडियो में बोलती हूँ। बस प्रीवियस ईयर इनके सोल्व कर लेना। तो क्या, अगर आपको इसके पेपर नहीं मिले हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको वहां से वो क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप वहां से कुछ लाइक 2011-12 इस तक के क्वेश्चन है वो मैं शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन। ठीक है, सो उन प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर हो ना, वो तो आपको सारे सोल्व करने ही है। और जनरल क्वेश्चन में आप अगर जब सोल्व करने लगोगे ना, तो आपको आइडिया मिलता जाएगा कि आप कितना सोल्व कर पा रहे हो। और जनरल क्वेश्चन में ना कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता, सारा सोल्व करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, जितना आए सही से वो सोल्व करना, नेगेटिव मार्किंग बस मत करने देना। जनरल क्वेश्चन में मैंने जो एनालाइज किया है, टीफर में मेनली आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ लाइक पैसेज टाइप दे देते हैं, उसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं। और लाइक जैसे डिस्टेंस का पूछ लिया, टाइम का पूछ लिया, जो फिजिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मली होते हैं। तो 4-5 टाइप के कुछ क्वेश्चन है वही आपसे जनरल क्वेश्चन में पूछते हैं। ठीक है, सो ये बात होगी हमारी सेक्शन ए की। देन फर्दर इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन बी, जो कि फिजिक्स है। फिजिक्स में नॉर्मली बायो के स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्टी होता है फिजिक्स पार्ट सॉल्व करने में। तो ये तो आप फिजिक्स का एकदम ये मत टेंशन लेना कि मेरे को तो फिजिक्स नहीं आता होगा या नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स सबकी, अब बायोलॉजी के स्टूडेंट आपके साथ दे रहे हैं तो सबकी ही वीक होगी। ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स हमने 12th तक पढ़ी होती है या लगा लो अंडर ग्रेड तक पढ़ी होती है, उसके बाद नहीं पढ़ते, तो किसी की भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। लेकिन हम जैसे जैसे प्रीवियस ईयर की सोल्व करोगे ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम टाइम पे सोल्व हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर को सोल्व कर लेना, क्योंकि उनको सोल्व करोगे तो आप उनके साथ के टॉपिक देखोगे, उनके फॉर्मूले देखोगे, तो उससे आपका सोल्व होता जाएगा। और फिजिक्स में भी कुछ लाइक जैसे कैपेसिटर के क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चन है, एंड लाइक फिर मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन आ गए, थर्मोडाइनेमिक्स के आ गए। इस करके कुछ कुछ पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसका थोड़ा सा ध्यान दे लेना, और वो भी पीवाईक्यू में आपको मिलता जाएगा, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि फिजिक्स के पार्ट में से क्या करना है। और ये जो मैंने कुछ टॉपिक बोले हैं इनको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, देन नेक्स्ट इज सेक्शन सी, जो कि हमारा होता है केमिस्ट्री। इसमें से जो ये यूनिट लिखा है ना, बस इसमें से ये पार्ट कर लेना, केमिस्ट्री के आराम से आपके 15 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 10 तो आराम से हो ही जाएंगे। एंड ऑल्सो अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो केमिस्ट्री तो
आई एम होपिंग कि दैट विल बी गुड. सो केमिस्ट्री में व्हाट यू हैव टू डू, सॉल्यूशन के क्वेश्चन, सॉल्यूशन में जैसे मोलैरिटी, मास निकालना, इस टाइप से. ठीक है. सो ये सब करना है. सॉल्यूशंस इस यूनिट से मैंने प्रीवियस में देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज रिएक्शन काइनेटिक्स. रिएक्शन काइनेटिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ दिस, फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. ठीक है. तो रिएक्शन काइनेटिक्स तो जैसे लाइक आपके बायोकेमिस्ट्री में भी आ जाती है. ठीक है. तो रिएक्शन काइनेटिक्स तो अच्छे से ही करना, और गेट के एग्जाम में भी रिएक्शन काइनेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे जाते हैं. तो अगर इफ यू विल सोल्व द क्वेश्चंस एट दिस टाइम ना, सो आपको बाद में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस होगी अगर अभी थोड़ा सोल्व कर लोगे तो. देन फर्दर इज थर्मोडाइनेमिक्स. थर्मोडाइनेमिक्स से भी अच्छे खासे लाइक डेल्टा एच और डेल्टा एस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में. देन नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग. इससे पूछे जाते हैं नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन बेस के क्वेश्चन, कि आपको कोई अभी फॉर्मूला दे देंगे, उससे पूछेंगे कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, या फिर और भी इससे कुछ थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से. ओके. देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली पूछा जाता है जो नेमिंग वाली रिएक्शन होती है, तो नेमिंग वाली रिएक्शन को अच्छे से कर लेना. सो अगर ये 4-5 यूनिट है, अगर इनको ध्यान से कर लोगे तो केमिस्ट्री हो जाएगा. फिजिक्स का इतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. जनरल क्वेश्चन भी नॉर्मली जो आप अपने CSIR गेट या जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उसके साथ साथ ही प्रिपेयर हो जाएगा. तो ये तो हो गया हमारा A, B और C सेक्शन की बात. बी का घबराने की जरूरत नहीं है. फिजिक्स में नहीं होता है तो छोड़ दो, जितना भी प्रीवियस ईयर से हो रहा है बस उनको कर लेना. देन नेक्स्ट लास्ट पार्ट आता है हमारा जो मेन बायोलॉजी वालों का होता है, सेक्शन डी. तो इसके सिलेबस में आपको मेन क्या करना है, बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. बायोकेमिस्ट्री में बोलूंगी जितनी भी यूनिट अभी मैं बताऊंगी उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो किस लिए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन केमिस्ट्री पार्ट में भी आते हैं. मैंने देखी है कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन और उससे भी कई सारे के कैट के एम, इसके क्वेश्चन भी केमिस्ट्री वाले पार्ट में आते हैं. तो इसीलिए डबल इंपॉर्टेंट हो जाती है बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि बायो के पार्ट में तो आ ही रही है, इसके साथ साथ केमिस्ट्री के पार्ट में भी आती है. ठीक है. तो ये सबसे ज्यादा फर्स्ट यूनिट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो एकदम स्किप नहीं करना. जितना ज्यादा पढ़ सकते हो बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना, वो भी एंजाइम वाले पार्ट को सबसे ज्यादा. ठीक है. क्योंकि एंजाइम वाला पार्ट केमिस्ट्री में भी आ रहा है और बायोलॉजी में भी आता है. देन सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी में सिग्नलिंग तो नहीं पूछा गया है अब तक किसी भी क्वेश्चन पेपर में. सिग्नलिंग से रिलेटेड नहीं है. सेल बायोलॉजी का बहुत ही कम पार्ट है, लाइक एक दो क्वेश्चन ही किसी किसी ईयर में पूछा गया है. अदरवाइज सेल बायोलॉजी से इतना नहीं है, बट इट स्टिल इट्स इंक्लूड्स. माइक्रोबायोलॉजी इज इंपॉर्टेंट. इससे हर साल एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं. ठीक है. मोल बायो में भी ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जा रहे, DNA से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे. ठीक है. तो मोल बायो है इम्पोर्टेंट. देन नेक्स्ट जेनेटिक्स. जेनेटिक्स से भी दो दो क्वेश्चन हर पेपर में, हर एक ईयर में पूछा गया है. जेनेटिक्स में क्रॉस से रिलेटेड सबसे ज्यादा है, डाईहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है. और लाइक कुछ डिजीज से रिलेटेड है, मेंडेलियन डिजीज और इनहेरिटेंस जो डिजीज होती है हमारी, उससे रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चन है. तो दिस इज अबाउट जेनेटिक्स. देन नेक्स्ट इज माइक्रोबायोम. माइक्रोबायोम में भी कई क्वेश्चन है, लाइक वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड या फिर कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, ये सब क्वेश्चन है. ठीक है. और इसमें टेस्ट क्रॉस, सॉरी 3 पॉइंट और 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस से भी पूछे गए हैं जेनेटिक्स में. माइक्रोबायोम में हमारे आगे बैक्टीरिया वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड देन हमारा लाइक कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन, इनसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं माइक्रोबायोलॉजी से. ठीक है. देन नेक्स्ट आ जाता है डाइवर्सिटी. ये इतना ज्यादा नहीं है, कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन नॉर्मली पूछे गए हैं. जो जर्नल क्वेश्चन होते हैं वो इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो पढ़ रखे है उसी से हो जाएगा. लाइक ये पूछ लिया कि बायरेडियल सिमेट्री किसमें है, या फिर आपसे पूछ ले कि लाइक ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सा है, एग्जाम्पल दे देंगे और उनमें से पूछ लेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सा है. या फिर आपको कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि इसके लिए कौन सा करेक्ट है और इनकरेक्ट है. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू शुड कंसिडर कि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं. देन नेक्स्ट इज एनिमल फिजियोलॉजी. ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं. एक तो मेनली RBC से क्वेश्चन आ रखा है, और एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड. ठीक है. और किसी पार्ट से इससे क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं.
एनिमल फिजियो में भी ज़्यादा, और ना डाइवर्सिटी इनसे ज़्यादा, ठीक है। सो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उनको ध्यान से पढ़ लेना एटलीस्ट। एंड देन दिस इज सेकेंड लास्ट है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इससे रिलेटिवली काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्या होता है टिफर के एग्जाम में, अगर आपका गेट के इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में भी अगर अच्छा रैंक हो तो वहां से भी आपको एडमिशन मिल जाता है, इसलिए आई थिंक कि इकोलॉजी इवोल्यूशन से काफी अच्छे नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देन आ जाता है हमारा लास्ट मेथड्स इन बायोलॉजी। ये तो कहीं पे भी एक्सेप्शन होता ही नहीं है, कोई भी किसी भी यूनिट से क्वेश्चन पूछेंगे मेथड्स इन बायोलॉजी जो टेक्निक होती है वो तो इंक्लूड हो ही जाती है, तो इसीलिए ये तो कहीं छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। और जो मैंने डिस्कस किया केमिस्ट्री फिजिक्स और जर्नल क्वेश्चन का सिलेबस, इनको फिजिक्स को इतना ज्यादा कंसीडर मत करना, जितना हो सकता है पीवाईक्यू को सॉल्व करना और उन्हीं को बस याद रखना। फिर सेक्शन सी में आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से जो जो ये यूनिट बताइए बस इन्हीं को कर लेना, इससे ज्यादा यू डोंट नीड टू क्रॉस। बायोलॉजी में ये सब यूनिट जो बताई है, जो ज्यादा मैंने स्टार मार्क्स किए इनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना, ठीक है। दिस ऑल्सो तो कुछ ज्यादा नहीं, बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, देन मोल बायो, जेनेटिक्स, माइक्रो से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आए हुए हैं, इकोलॉजी इवोल्यूशन एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द एग्जाम ऑफ टिफर जीएस। देन इसके बाद अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, सो जो टिफर है वो आपका रिजल्ट निकालता है, उससे पहले आंसर की आती है जिसमें आप अपना चेक कर सकते हो। उसके बाद उसका इंटरव्यू का डायरेक्ट जो स्टूडेंट सेलेक्टेड होते हैं उनका लिस्ट आता है कि कब कब शेड्यूल आता है कि कब कब आपका जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनका इंटरव्यू कौन सी डेट के होगा, फिर आपको वहीं जाना होता है ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए। एंड देन इफ यू गॉट सेलेक्टेड देन यू विल गेट योर नेम इन फाइनल लिस्ट एंड ओके यू आर डन। सो today this was about TIFR GS exam. So thank you so much for watching this video, and if you like this video then share with your friends and comment and subscribe also. We'll meet you in next video. Till then, take care. Bye.